everyone, I'm Priyanka Dev Chaudhary and I cleared my class 10th boards from PM Shri KV Misa Kent and I secured first rank with 97%. Today I'm here with you to share my strategy on how I prepared for my boards and how you should prepare for your upcoming boards. First of all, genuinely मैं बोलूँगा, rather than studying a lot in a day, rather than studying like a huge amount of hours in a day, you should go for being consistent. Always select a fixed hour and हमेशा एक time table बना के रखो. Like use the days of weeks as a time to study different subjects. For example, you can study maths on Monday, then science on Tuesday, and be consistent. जो टाइम टेबल आपने बनाया है, मेक श्योर कि ये आप फॉलो कर पाओ और मेक रियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ. सेकेंडली, फर्स्ट ऑफ ऑल बी कंसिस्टेंट. सेकेंडली, रादर देन वर्किंग हार्ड many times, I should suggest that you should work hard once and then work smart. How? Rather than studying a chapter again and again and again, read a chapter once, mark all the points and make short notes immediately so that when there's a test, you can immediately refer to your notes and prepare well for the exam. Then, point number 3, when it comes to competition, people say that you always need to have a competition when it comes to boards. But to be honest, that's not very true. The only competition that you need to have is with yourself. Always compete with your past self rather than competing with your classmates. How? Compare your marks with your past marks, not with your friends. That helps you in keeping track of your, downfalls or maybe your upgradations. And after that, always make sure that you record your mistakes and make a small diary of that, so that जब भी आपका टेस्ट हो, you can always refer to those mistakes and make sure कि वो mistake आपसे repeat ना हो. Finally, the most जो stressful thing होता है बोर्ड्स में, that is stress management. Stress management कैसे करना होता है? लोग बहुत stress देते हैं कि you need to have that percentage, this percentage, you need to be better than that. तो इसे कैसे मैनेज करना होता है? I would suggest कि don't sacrifice your hobbies. Read books, travel to places, have fun with your friends and especially share everything with your family members. मैंने genuinely books को as a stress device use किया था कि stress को हटाने के लिए I always use books, and a great hand in that thing is our library sir who encouraged me to borrow books each week, and as a whole in the academic year 2023-24, I borrowed 19 books from our library, and really I'm really grateful for that. During the board exams, you'll face a very stressful period. So how to face that? I will tell you how I faced the period. During board exams, the next day after board exams, I didn't used to study. I picked up my favorite book, read a few chapters, and then after that go to your studies. How will that help? That will make disappear all of the other stress that you had. Genuinely, that was one of the most helpful things that happened to me this year. And genuinely, if you follow the steps, I'm sure you'll crack your boards with a fairly high marks. So let's summarize up. First, be consistent. Second, keep track of your mistakes. Third, compete with yourself. Fourth, don't sacrifice your hobbies. And if you follow these points, I'm sure you'll have a great marks in your boards. Best of luck for your upcoming boards. Hello everyone, my name is Bhagyashree Saikia and I secured 90.2% in my 10th board. So जब मैं फर्स्ट 10th क्लास में आई तो मेरा 9 का परसेंटेज 90 से अप नहीं था, इट वॉज 89%. तो उस टाइम में मैंने सोचा था इस बार 89 है तो मुझे तो 10 के बोर्ड में 95 प्लस लाना है, पर मार्क्स इतने एक्सपेक्टेड नहीं आए हैं. बट फिर भी मैंने पूरे साल अपना बेस्ट दिया था और उस टाइम में मुझे दिमाग में ये था कि मुझे सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं. पर धीरे धीरे जब मैं एग्ज़ाम का टाइम जाता गया, मैंने सोचा किसी दूसरे इंसान से ज़्यादा लाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, अपने आप को इम्प्रूव कितना किया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो मेरा जो पहला प्री बोर्ड था उसमें मेरा 80% आया था. तो उस टाइम में मेरे दोस्तों को मुझसे ज़्यादा आया था और ऑब्वियसली सबको जब दोस्तों को ज़्यादा मिलता है खुद को कम मिलता है तो बुरा लगता है. तो मुझे गंदा फील हुआ था कि अरे यार सबको अच्छे मिले हैं, मुझे बहुत कम मिला है. तो मैंने सोचा इस बार जो मिला है नेक्स्ट बोर्ड में मैं
अच्छा करूँगी। तो नेक्स्ट प्री बोर्ड 2 में मुझे 85% मिला। तो उस टाइम भी मैंने ये नहीं देखा कि मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बल्कि मैंने ये देखा कि मेरे दोस्तों को मुझसे ज़्यादा आया है। फिर धीरे धीरे करके मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि हमें हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं, बल्कि अपने आप को अपने से ही कंपेयर करते रहना चाहिए। और बोर्ड्स के टाइम में मैंने क्या किया है, इतना स्ट्रेस मैंने नहीं लिया है। मैंने ठान लिया कि जो हुआ हुआ है, मुझे अपना बोर्ड स्ट्रेस फ्री देना है। तो मैंने बोर्ड्स के टाइम में अपने आप को एंटरटेन भी रखा और साथ साथ पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपना एंटरटेनमेंट, मैंने जैसे कि मैंने कॉमिक्स पढ़ा इंटरनेट में, फिर मेरे पास बहुत सारे नॉवेल्स थे, मैंने उनको देखा, कुछ न्यू टॉपिक्स भी देखे। पर उनके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मेरे बोर्ड्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। तो इसी प्रकार से मैंने भी एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट तो नहीं आए मेरे, बट स्टिल मैं अपने रिज़ल्ट से अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड थैंक यू, आपको भी ऑल द बेस्ट। Hello everyone, I Krishti Bora of class 10B and I have secured 87% from PM Shri Kendriya Vidyalaya Misa Kent. So first of all I'll start with so जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तब आई विल से कि मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि आई यूज़ टू कैरी ऑन माई को करिकुलर एक्टिविटीज़ विद माई सेल्फ। और उसके बाद जैसे जैसे सेशन स्टार्ट होते गया, उसके बाद आई रियलाइज़ वन थिंग कि मेरे बेसिक्स क्लियर होते गए। और उसके बाद मैंने अपना नोट्स बनाया, जो मेन पॉइंट्स होता है उसका नोट बनाया। एंड जब भी मैं बुक ओपन करती हूँ तब, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ और मेन टॉपिक्स को पहले क्लियर करूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँ। और कभी कंफ्यूज मत होना, एक डायरी अपने साथ कैरी करना। सो मेरी क्लास 9 से मैंने एक डायरी कैरी किया है 2023 to 2024 इस बार। तो उसमें मैंने सारा अपना स्केड्यूल, अपना डेली रूटीन कि आज मुझे उठकर क्या करना है, और जैसे कि अपने काम को भी मतलब कैरी ऑन करना है। और वैसे ही जब प्री बोर्ड्स आए तो प्री बोर्ड्स में भी बेसिक्स तो क्लियर थे, पर फिर भी उतना ग्रेड्स परसेंटेज भी इतना अच्छा नहीं आ पा रहा था। फिर माय पेरेंट्स बॉट सम एक्स्ट्रा बुक्स, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने किए। सो उसके बाद आई रियलाइज़ कि हाँ, इतना हो रहा है। फिर हम लोग का स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस भी किया गया, जो मतलब जिसका ग्रेड थोड़ा सा कम आ रहा था। तो तब मैंने ठान लिया था कि अब तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। और मेरे जो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। हम लोग के रोज़ एग्ज़ाम्स होते थे, हर एक चैप्टर का एक एग्ज़ाम होता था। उसमें मैं रात को पूरा क्लियर करके जाती थी और होप करती कि आज तो फुल मार्क्स लाना ही है टेस्ट में। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस हो गया। उसके बाद बोर्ड्स के बाद थोड़ा सा टाइम था हम लोग का पढ़ने के लिए, उसमें भी मैंने सोच लिया कि अब तो करना ही है। फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए, फिर एग्जाम्पलर्स भी थे, एग्जाम्पलर्स किए। फिर और रिमेंबर वन थिंग, एनसीईआरटी को हर एक एग्जाम्पल देखो, हर एक एक्टिविटी, एक भी चीज़ मत छोड़ना। मतलब तुम्हें पूरा एनसीईआरटी तुम्हारा एकदम पूरा अच्छा रट्टा होना चाहिए। तो हाँ, पहली चीज़ तो एनसीईआरटी वो हो गया। तो और मैंने ये रियलाइज़ भी किया कि बोर्ड एग्ज़ाम में हाँ, अगर तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी क्लियर है तो तुम्हें मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से क्या, तुम बस लिखते जाओगे आराम से। तो हाँ, और कभी भी अपने हॉबीज़ को पीछा छोड़ना मत। ट्राई टू कैरी ऑन योर हॉबीज़ विद योर एकेडमिक्स।